Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the 5th chapter. In fact, the last fag end of the 5th chapter, second last verse. We will be discussing verse number 27 and 28. So 5.27 and 5.28. No problem. No? Right? Finished. Yes. Those who don't have, please. जिसके पास नहीं है हाथ ऊपर करें. English. हाँ. और हाँ ये बाजू में ओके बाकी आप लोग प्लीज शेयर कर लेना. ओके प्लीज anyone read 5.27 5.28 fast. Shutting out all external sense objects, keeping the eye and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breath between the nostrils, and thus controlling the mind, senses and intelligence. Transcendentalists aiming at liberation become free from desire, fear and anger. One who is always in this state is certainly liberated. It's too many instructions, right? First and foremost, Lord is giving the prelude starting for the 6th chapter. 6वां अध्याय में अब क्या आने वाला है? ज्ञान योग. दैट इज अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है. अष्टांग योग मतलब जो हम लोग आजकल जिसको योगा समझते हैं ना, सांस छोड़ना फिर ये सब करना. प्रॉब्लम इज अष्टांग योग मतलब 8 अंग है इस योग के. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वो सब छोड़ दिया. यम नियम सीधा छोड़ के सीधा आसनों में पहुंच जाते हैं. दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सॉरी टू ऑल द योगीज सिटिंग हियर. But fact is, the purpose of yoga is to connect with God. But here the purpose of yoga has become something else rather than connecting with God. So the biggest drawback is when we are into bodily concept of life, we do the asanas only for the bodily pleasure. शरीर को ठीक रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. But योगा बेसिकली कंपेयर्स विद अष्टांग योगा. अष्टांग योग के पहले जो 2 हैं यम और नियम वो लोग अक्सर फॉलो नहीं करते. सो नाउ ही इज जस्ट क्रिएटिंग द प्रील्यूड. आप बोलते हैं ना वो ट्रेलर दिखा रहे हैं कि भाई कैसा होना चाहिए. तो इसी शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, कीपिंग द आई एंड विजन कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द 2 आईब्रोज, सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रेथ. इसको हम लोग कुंभक और रेचक कहते हैं ना. दैट इज व्हाट इज सस्पेंडिंग द. यू कम टू अ स्टेट वेयर यू बैलेंस योर ब्रीदिंग. तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रेथ विद इन द नॉस्ट्रिल्स एंड दस कंट्रोलिंग द माइंड. तो घुमा फिरा के कहां पे आ रहे हैं हम लोग? वॉट एवर यू डू द एंटायर भगवद गीता, कोई भी शास्त्र पढ़ लो आप, वो आपको मन को कैसे काबू करना है उसके ऊपर फोकस करता है. कि हम जब प्रॉब्लम है मन एक ऐसा चीज है वो कभी काबू में, दिल हमेशा मांगे मोर. आई ऑलवेज सेड द प्रॉब्लम विथ अस इज हम लोग इस मन के वश में आके नाच रहे हैं. Everyone from a child to an old man, everyone is busy dancing under the pressure of the mind. The mind is the main culprit which is stopping you to be happy. आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसा? Yes, the mind is the main culprit. It is stopping you from happy. I already discussed yesterday lecture, but I'll just take a short revision of what I did yesterday evening. Very important point. I mentioned very clearly. The senses just give information. जैसे आंखें बोलती है कि आप क्या देख रहे हो, कान आवाज देता है, जीवा टेस्ट देता है, ये अच्छा है, बुरा है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, जैसा भी है. So everywhere the information is given by the senses. The senses do not enjoy. What enjoys is the mind. मन जो है इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों के निमित्त मजा लेने की सोच रहा है या खुशी लेने की सोच रहा है. द माइंड ओनली इज द मेन कल्प्रिट.
Your senses cannot enjoy. Why your senses cannot enjoy? Because senses are just information देते हुआ चीज है. Let's say कल ऋषिकेश goes and stands on the weighing scale. Weighing scale क्या बताएगा? Weight. And it tells. अंदर से आवाज भी आता है. ऋषिकेश बहुत मोटा हो गया. थोड़ा पतला हो जाओ. No, do dieting. Will this weighing scale say? The weighing scale. And neither the other way. Rishikesh, you have become very slim. You have to eat well and put on weight. Will that weighing scale say? No. वो वजन काटा कभी बोलता नहीं, सिर्फ आपका वजन बताता है. उसी तरह आपका जितने भी इंद्रिय हैं वो आपको बताते हैं. ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये ऐसा है. बाकी दिमाग आइडिया देता है. अब शादी में जाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, प्लेट में मीठा और तीखा दोनों रखेंगे. क्या है? मीठा मीठा जाएगा नहीं, तो उसको काटने के लिए 2 तीखा खा लेते हैं. 2 रसगुल्ला खाया तो 2 तीखा खा लिया, तो वापस 2 रसगुल्ला खा सकते हो. तो हु इज प्लेइंग द गेम? इज इट योर माइंड और इज इट योर टंग? इट इज ओनली योर माइंड व्हिच इज टेलिंग यू कम ऑन ईट द रसगुल्ला, खा ले. एंड माइंड ही आइडिया देती तू तीखा खा ले बीच में, क्योंकि माइंड को मालूम है बेचारा ये सेंस नहीं बैर कर सकेगा. तो द माइंड टेल्स भैया ये कट कर और ये खा ले, तो ये खा लेगा. देन यू कैन कम बैक टू योर रसगुल्ला अगेन. सो व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज द crookedness, the suggestion, the ideas of doing sense gratification is given by the मन का पूरा खेल है ये. एंड whole activity of Ashtanga Yoga is to control your mind. और कुछ नहीं है, यहां पे कोई व्यक्ति पूरा नहीं है. Basic purpose of Ashtanga Yoga is to control the mind. Everywhere the entire Bhagavad Gita, कोई भी शास्त्र भगवद गीता खोल के पढ़ लो, रामायण खोल के पढ़ो, महाभारत खोल के पढ़ो, एक ही ज्ञान दे रहा है, मन को कैसे काबू में. और मन को काबू में किया तो आप सुखी. जो साधु है, साधु 3 वैरायटी के होते हैं. वैरायटी इन द सेंस 3 सोच के होते हैं. नहीं कुछ नहीं. साधु 3 वैरायटी के होते हैं या 3 सोच के होते हैं. नॉट वैरायटी, सोच. उसको मालपुआ, रबड़ी, कुछ भी मिल गया ना, बढ़िया भोजन, घी अन्न, तो उसको अन्न भी चलेगा, घी अन्न भी चलेगा. सिर्फ चने मिल गए तो भी चलेगा, और कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा. वो व्यक्ति सुखी रहेगा. और द प्रॉब्लम विद द पीपल, व्हाई पीपल आर नॉट हैप्पी, लोग क्यों खुश नहीं है? बिकॉज फलाने दुकान का मिठाई होगा तो ही मजा आएगा. वी हैव बिकम सो ब्रांड कॉन्शियस. वी वांट दैट स्पेसिफिक, उस दुकान का रसगुल्ला, उस दुकान का फाफड़ा, वो फाफड़ा का जलेबी, उस दुकान का ये, उस दुकान का वो. स्पेशलिटी में हम लोग हटके पड़े. That is the problem. The problem is entire game is the mind. See, whatever you eat, it is a 2-inch tongue. Once it goes down the throat, आपने कौन सा ब्रांड का खाया, इमेटीरियल. पेट गुड़गुड़ कोई भी ब्रांड से हो है कि नहीं? You eat in the best of the hotels, then also you can get stomach upset. So it is immaterial. So what is the problem? The problem is the mind. And a step ahead, if you go, people in this world are all fixed to attachments. And ये attachment कहां से आता है? Mind is again the culprit. Mind ने मान लिया कि हाँ भाई, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पिताजी है, मेरा बेटा है, ये है, वो है. I am not saying no, but since the mind is able to accept, then only you are able to serve. Otherwise you cannot serve. But what do we say in all satsang, all pravachan, क्या बातचीत होती है? आसक्ति छोड़. Is it practically possible? So let's be practical. This I always take. मैं practical भगवद गीता क्लास करता हूँ. No theoretical. बोलना आसान है, प्रवचन में बोल देंगे आसक्ति छोड़ दो, and then that's it. Something else happens in life. So it's better we understand how do we practically understand this.
did first, in the first hand, why did Lord create आसक्ति? अगर ना भगवान बनाते, ना हम ये झंझट में फंसते, क्या आसक्ति होती ही नहीं? आसक्ति होती है या नहीं? कितने लोग एक्सेप्ट करोगे? अटैचमेंट, और दिस इज माई कार, दिस इज माइन, दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई फैमिली, माई चाइल्ड, माई हाउस, माई प्रॉपर्टी, माई बैग. ट्रेन में माई सीट के ऊपर भी झगड़ा होता है. छोटा सा माई छोड़ने वाला है, लेके नहीं जा सकते घर, फिर भी पीपल फाइट फॉर दैट वन सीट. सो व्हाट इज दैट माइंड अटैचमेंट? ये क्या है? क्यों दिया भगवान? व्हाई शुड वी हैव अटैचमेंट? अगर शास्त्र सारे आचार्यगण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं अटैचमेंट छोड़ दो, छोड़. जैसे कुछ लोग मेरा क्लास सुन के नेक्स्ट डे बीवी को कौन तू, मैं तो नहीं जानता हूँ, प्रभु जी ने कल बोला था अटैचमेंट छोड़ दो. इतना आसान है? रोटी नहीं मिलेगी खाना नहीं मिलेगा. सो व्हाट डू वी डू? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? कैसे करें? यस, अंजना माता जी बताइए, आसक्ति छोड़ना है? हाँ बोला तू भी लफड़ाना करे तो क्या करें, है ना? बिग प्रॉब्लम. यस राधा माता जी, क्या लास्ट बेंच वाले पे नजर ज्यादा रहता है मेरा? बोलिए, आसक्ति छोड़ना है? नहीं छोड़ना? याद रखना, यह आसक्ति भी मन का है. द डे यू डाई, जब कोई पति मर जाता है, कभी पत्नी कहती है मैंने इसके लिए इतना करवा चौथ का व्रत किया था, इतने मैंने उपवास रखे थे इनको पाने के लिए, अब उनको कहाँ लेके जा रहे हो, रहने दो थोड़ा दिन और. तो बोलेगी पत्नी, पत्नी क्या बोलेगी? लेके जाओ, जल्दी से लेके जाओ, अब ये नहीं रहे शरीर में से बाहर. जो पत्नी ने आपका 30 साल 20 साल 40 साल जो भी जितने भी साल आपके लिए व्रत रखा, पूजा रखा, सब किया, वो भी क्या बोलती है? लेके जाओ. तो आसक्ति कहाँ गई? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, सब खिलाया पिलाया, वही बोलेगा हाँ पापा को मुखाग्नि देना है, मुखाग्नि देना है, फटाफट मुखाग्नि देके आके नहा के आराम करना है, थक गया हूं. It is a fact. This has been happening from ages, from generations. You ask your great grandfather, without quoting anyone's name, I'll tell you a true fact. आसक्ति कितनी खतरनाक चीज होती है. हमारे परिचित हैं, मैं नाम नहीं दूंगा, उसकी वाइफ 3 महीने पहले गुजर गई. तो इट हैपन टू बी हिज बर्थडे, 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था. उनको विश करने के लिए ऐसे कैजुअली, आई न्यू ही वाज सैड. वो पत्नी के जाने से वो टूटे हुए थे, वो और उसका बेटा दोनों टूटा हुआ. तो हमेशा बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा धोखा हो गया, वो मुझे छोड़ के चली गई, दिस एंड दैट. मैंने फोन किया तो बोला क्या जन्मदिन कैसा जा रहा है? रोने लगा, दर दर रोने लगा. मैं बोला रो मत, होता है, जीवन है, क्या है, कथावाचक फोन करेगा और क्या बोलेगा, भगवत गीता बोलेगा तो और क्या. तो यानी इज टेलिंग मी, देखो मैंने ना मेरी पत्नी मरने के पहले 2 दिन पहले जो कपड़ा पहना था, वो जो बेडशीट था, जो पिलो कवर था, मैंने सब रखा है, और मैं और बेटा उसको जाके बार बार उसका सुगंध लेते हैं. आई जस्ट कॉट माई हेड. मैंने इसका आगे प्रवचन दूंगा तो मेरे गुरुजी मुझे डांटेंगे. आई बेटर कीप माय फोन डाउन. ऐसे वो आई कैन सी योर सॉरो. ओके बाय बाय करके मैंने फोन. बट इज दिस नॉट आसक्ति? This is also a type of foolish आसक्ति. जो चीज छूटने वाली है उसके साथ हमारा आसक्ति फुल ऑन है. You must be attached, someone must be attached to a dress. ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, ये मेरा फेवरेट स्लीपर है, मेरा फेवरेट शू है, बैग है, whatever it is. But whatever is favorite, one day will be taken away from you. दिन एक ना एक दिन वो बैग फटेगा, एक ना एक दिन वो जूता टूटेगा, एक ना एक दिन वो कपड़ा फटेगा. सो योर अटैचमेंट इज वेस्ट. सो
So attachment, why did God give attachment? So that you can attach yourself to God. But we are busy using, the problem is we are using all the resources given by God for against God. For all resources which God has given us, जितने भी हमको प्रसाद क्या बोलते हैं resources को संसाधन, हाँ, जितने भी संसाधन दिए गए हैं हमको, things, resources, like you want to write, you need a paper, you need a pen, you need light. 3 basic things you need. I mean, you need a hand also, but you need, basically you need a paper and pen and a light. ये 3 चीज रहेगा तो आप लिख सकते हो. Similarly, so these are the resources. The pen becomes a resource. You cannot write without the pen, you cannot write without the paper, you cannot write without the light. ये तीनों resources रहेंगे तो ही आप लिख पाएंगे. Similarly, all resources given by God, like Kama, Krodha, Lobha, Moha, Madha, Matsarya, Asakti, attachment. All this are given by God to use it for Him, but we are using it against. उसके खिलाफ जाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उनके पास जाने के लिए नहीं, उनसे दूर जाने के लिए यूज कर रहे हैं. काम किनका करना चाहिए? भगवान. और करते किसका काम? मोदी. कितना पैसा मिलेगा, कितना कमाना है और कितना कमा सकता हूं, और कब्र में जाने तक कमाते रहूंगा, लेके नहीं जाना. मुझे पता है मैं अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाऊं. बच्चा बड़ा निकम्मा है. Is your child not a fool, not to earn, not having the caliber to earn money? But still, that is why Shastra says, Poot saput, to ka sancheti, Poot kaput, to ka sancheti. अगर पूत सपूत है तो वो कमा लेगा, और कपूत है कितना भी कमाओ उड़ा के खत्म. So, I'll tell a small story on attachment. Let's see how many of us get enlightened on that. एक बार कुछ लोग नाव में जा रहे थे, समुद्र में जा रहे थे नाव से. The boat was going full of all, एक ही गांव के लोग थे, कुछ लोग जा रहे थे. अचानक तूफान आ गया. ऊपर These are all pressure. तो ऊपर नीचे टॉस हो रहा था नाव. तो लोग सब भयभीत हो गए. तो you must have experienced many times. He is a marine engineer, so he knows. He has seen a lot of traveling and sea, high seas, not even sea, high sea. तो डर लगने लगा. तो कुछ लोग अंदर डर गए, बोला समुद्र बलि मांग रहा है, समुद्र बलि मांग रहा है. That's what generally people say ना, बलि मांग रहा है. बट समुद्र ऐसा नाव उछल रहा है, तो अब किसका बलि दें? अभी नेक्स्ट चांस वही कहते हैं ना. तो क्या हमेशा बलि किसका दिया जाता है? जो सबसे कमजोर आदमी रहता है ना, उसी का बलि दें. तो आप किसको दें? तो देखा उसमें एक लूला लंगड़ा आदमी था लोगों में, भीड़ में. बोला ऐसा भी कोई काम का नहीं है, इसको बलि में चढ़ा. बोला मैं ही मिला गया पूरा इसमें, मेरे को क्यों चढ़ा दिया? नहीं, आपको डालना ही है, चलो समुद्र महाराज की जय बोल के उसको उठा के बलि चढ़ा. बट बोलते हैं ना, वक्त से पहले कोई कुछ, किसी का मृत्यु आता नहीं, मरा नहीं. थपड़े खाते खाते सीधा पहुंच गया लंका. कहां पे? लंका. इट्स अ ट्रू स्टोरी रिटन इन भक्तमाला. ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, भक्तमाल की कहानी. तो थपड़े खाते पहुंच गया लंका. तो लंका में सब जम्बो किंग से राक्षस, त्रेता युग के, और आजकल का कलयुग मतलब लिलीपुत्र. It is said Kali Yuga, you go to Rajasthan,
The forts have big huge doors. ऐसा नहीं कि उन लोगों को FSI ज्यादा था, डोर बड़ा बड़ा था. It's not that they hadn't have any FSI problem. आदमी का साइज ऐसा. राणा प्रताप, one sword is 125 kgs. 125 किलो का एक sword है. किसी को आज देगा तो उठा नहीं पाया, मारना तो दूर की बात. तो just imagine how he was able to use that sword. आराम से उस तलवार को चला के दुश्मन को खात्मा करते थे. तो those time people were so well built. Why you I don't know how many of you know. What was that? शाहजहां का पिक्चर ना, कौन सा वो? मुगले आजम. मुगले आजम में true fact, not any. पृथ्वीराज कपूर acted as Akbar. Not Akbar. Salim करके बोलता था. I still remember why is this fellow speaking with a sore throat. Salim. तो he acted. तो उसने पहला बोला कि I will use the same armory which Akbar used. तो they arranged the original armory for Akbar. पहना दिया उसको. उठने को बोला, उठ नहीं पाया. He was not able to get up from the chair. That heavy was the armory. What does it mean? In those days, people were so strong, well built. माल भी प्योर था. They were not eating Domino's pizza and junk food and fast food and what is that, momos, pastas, all this unwanted stuff. They were not eating. That's why they were more healthy. They could carry that 125 kg sword. आज 5 किलो उठाने के लिए आदमी को तकलीफ. Sorry. तो that Rakshas, King Kong size. Why you go to? आप लोग कितने लोग चित्रकूट गए? कोई गए? हाँ. चित्रकूट में स्फटिक शिला गए नहीं? तो स्फटिक शिला में रामचंद्र जी का पैर के चिन्ह कितने बड़े? इतने बड़े ना. तो शरीर कितना बड़ा है? Proportionately you can correlate that he must be so tall and well built. तो उस जमाने के लोग ही वैसे थे. तो वहाँ ये आदमी गया तो एकदम खिलौने की तरह देख रहा था उसको, एकदम बॉन्साई पर्सन विद बिग जायंट. उसने बोला अच्छा है, खिलौना अच्छा है, उसको मैं टोकरी में डाल के रखता हूँ घर पे. तो उठाया, उसको टोकरी में डाला और लेके गया. जाते जाते दरबार में राजा को दिखा दिया. और राजा कौन था तभी? रावण नहीं था. रावण मर चुका था. मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कुछ सालों पहले. तो यू मस्ट बी वॉन्टिंग, प्रभु लंका तो है नहीं, श्रीलंका हो गई अभी. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द लंका विच रामचंद्र जी वेंट एंड डिस्ट्रॉयड is and was not this Lanka. That Lanka was different. It was a piece of the Meru Parvat, Mahendra Parvat peak जो टूट गया था, वो समुद्र में गिरा था, वो बना लंका. सेकेंड, वो लंका को रामचंद्र जी हैज kept it in such a way that it will be in the fourth dimension. आज आपको दिखेगा नहीं. जैसे हम लोग को द्वारका देखना है तो हम लोग आज भी वो कुछ बेट द्वारका का चल रहा है ना, वो अंडर द सी जाके दिखाते हैं ना, वो तो हम लोग उससे खुश हो जाते हैं. बट बेट द्वारका वाज टोटली डिफरेंट एंड डिफरेंट डायमेंशन. जैसे कितने लोग बद्रीनाथ गए? क्यों का? तो बद्रीनाथ में जैसे वो भीम पुल है, भीम पुल के पास एक रास्ता है जो अलकापुरी, दैट इज कुबेर के राज्य को जाता है. दैट कम्स अंडर द फिफ्थ डायमेंशन. So we know only 3 dimensions: length, breadth and height. Whereas there are 32 dimensions in total. शास्त्र में 32 dimensions mentioned है. So this comes, Alkapuri comes in the same place where बद्रीनाथ का वो भीम पुल है, जो सरस्वती का जगह पे आके वो लुप्त हो जाती है ना, उसी जगह पे है. मगर वो डायमेंशन हमको नहीं दिखता बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड. तो उसको लेके गया और राजा को दिखा दिया उसने, विभीषण को. तो विभीषण ने देखा, तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उसको. तो बोला जो व्यक्ति राम के देश से आया हो, प्रभु रामचंद्र जी के देश से आया हो, मेरे लिए वो भी पूजनीय है. और जैसे उसने प्रणाम किया और उनको ऐसा छूने गया,
उसका पैर ठीक हो गया, उसका जो लंगड़ापन था, प्रॉब्लम इन हिज लेग बिकेम ऑलरेडी बिकेम नॉर्मल। और डर गया, शायद ये लोग बलि बोले लंगड़े का नहीं देते हैं अच्छा करके ही बलि चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में हार वार पहना है, मतलब बलि गया जिसको बलि चढ़ाए थे उसको हार वार पहनाते, हार वार पहना है, सब किया। बेचारा परेशान, कंफ्यूज्ड, थर थर कांपने लगा, यार ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं और ये थर थर कांप रहा है। तो विभीषण जी ने पूछा, क्यों आप इतना कांप क्यों रहे हो? नहीं, मुझे अपना देश जाना है मुझे यहाँ नहीं रहना है, अपने देश में जाना है। ठीक है, प्रबंध कर देंगे। तो अंदर से एक गठरी भर के हीरे मोती, ऑल वैल्यूबल थिंग्स, जो जो आप लोगों को वैल्यूबल लगता है वो वैल्यूबल थिंग्स सब उसको गठरी बांध के दी। और उसके अंदर ऐसा एक ताकत भर दिया कि वो पानी के ऊपर से एकदम चल के उड़ के जा सके। बस दैट्स अलकापुरी, आई मीन दैट्स लंका, दैट्स डिवाइन प्लेस। विभीषण ने दे दिया उसको आशीर्वाद, भागने लगा पानी के ऊपर, अपना देश की तरफ भागता हूँ, भाग रहा है। जाते जाते रास्ते में वही नाव मिला जिसमें से उसको फेंका वही लोग, उन्होंने अरे आजा ऊपर आजा, क्या हो गया, पैर वैर ठीक हो गया, हाँ, और एकदम अच्छा लग रहा है, कपड़े वपड़े अच्छे पहने, तूने राजा जैसे कपड़े पहने, और कैसे ठीक हो गया, पानी पे सब चल रहा, कैसे? उसने बोला ऐसा गया था वहां पे, ऐसे हुआ, पूरा कहानी उसने बताई। जैसे उसने बताया, वो लोग का नजर किस पे गया, उसकी गठरी जो थी जिसमें सोना चांदी सब भरा हुआ था, उसमें उसका लोगों का नजर गया। लोगों ने बोला वापस बलि चढ़ाते अब क्या करना है इसको, बलि चढ़ा देते हैं, ऐसे भी इसको क्या काम का, इसके पानी में जाएगा, हम लोग इसको वापस। बट ये टाइम ही बिकेम इंटेलिजेंट, उसको नजर देख के पता चला कि ये लोग मेरे को फेंकने वाले हैं वापस। तुरंत अपना गठरी उठाया, खुद कूद गया पानी में। बट दिस टाइम ही हैड द आर्ट टू वॉक ओवर द वाटर, भाग के वहां से चला। ये लोग पानी में चल के नहीं आ सकते, भाग के कैसे वैसा अपना देश पहुंच गया। जैसे आया, जमीन पे आया, जितने भी साधु संत थे उन सबको उसने बांट दिया। और उसको एक बड़ा पगड़ी पहनाया था विभीषण। पगड़ी में क्या है, व्हाट इज सो ग्रेट इन दिस पगड़ी? तो उन्होंने बोला कि बस संभाल के रखना है पगड़ी। तो उसने पगड़ी निकाली और खोली, और उसमें देखा एक तुलसी पत्र के ऊपर सीताराम करके लिखा था। व्हाट डिड ही राइट? सीताराम। एंड ही हैड पुट इट इन दैट पगड़ी उसके सिर पे मान दिया। तब उसको समझ में आया ये जो है सीताराम भगवान का नाम, इसके साथ मुझे अटैचमेंट, आसक्ति बनानी है। आई एम सपोज्ड टू गेट अटैच्ड विद द होली नेम, विद द नेम ऑफ लॉर्ड एंड विद द लॉर्ड हिमसेल्फ, एंड आई एम गेटिंग अटैच्ड विद worldly things, because he was very happy when he got that full guttery of gems, stones, pearls, everything, diamonds, whatever you call it. But he realized one thing, and that was the world is not interested in your devotional practice. आप क्या भक्ति कर रहे हो उससे दुनिया को कोई मतलब नहीं। आपके पास कितना माल पानी है उससे दुनिया को मतलब है। और भगवान को, आप किसी भगवान के पास जाके बोलो मेरे पास इतना करोड़ माल है, इतना करोड़ का शहर है, इतना करोड़ का प्रॉपर्टी है, इतना करोड़ का ये है। भगवान हाँ अच्छा और क्या क्या है भाई, तू तो बड़ा भक्त है, तू आगे आया, तेरे पास क्या है, अच्छा बहुत कम है, तू जा पीछे जाके खड़ा हो। कभी भगवान बोलते हैं? भगवान इनफैक्ट उस पर भी उतना ही नजर डालते हैं जितना कि इसके पास बहुत कम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? लॉर्ड इज वेरी क्लियर that he wants you in the sense, you as a soul with your mind. He is not interested in your bank balance, in your wealth, you know, मेरे पास रेशम के कपड़े हैं, मेरे पास सिल्क की साड़ी है, ये है वो। He is not bothered, he doesn't want। क्या करेगा आपका सोना चांदी लेके या आपका मालपुआ खा के?
राधा ने तुमको इतना बढ़िया खाना खिला रही है, लक्ष्मी देवी इतना बढ़िया खाना खिला रही है, वो थोड़ी हमारा भौतिक खाना खाने के लिए बैठे हैं. सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड. हमको पड़ी है, वी आर इंटरेस्टेड बिकॉज वी वांट टू गो देयर. ही इज नॉट गोइंग टू कम हियर बट स्टिल ही इज मर्सीफुल. देखते हैं 84 लाख योनियों में हम कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी कोई ना कोई जानवर, कीट पतंग, कॉकरोच, लिजर्ड, सब योनियों में से गुजर रहे हैं. तो लॉर्ड पिटीज अस. अरे सड़ रहा है. इन एवरी योनि वी आर रॉटिंग. in a donkey's yoni also, a donkey gets a spouse. पति या पत्नी मिलता है, उसके भी बच्चे पैदा होते हैं, शायद उस बच्चों के साथ भी आसक्ति तो होगी. तो जीवन हर योनि में हमारा क्या हुआ, भगवान छोड़ के बाकी चीजों पे आसक्ति बढ़ती है. और वही आसक्ति आज भी इंसान की योनि में हमारे अंदर रग रग में भरा हुआ है. Every inch of our body is filled with attachment to material things which are of no use to us. भगवान ने आसक्ति दी किसके लिए? I have already answered. Let me see how many remember. To get attached to God, but we are using it to attach ourselves to worldly things which are going to be taken away at the time of मृत्यु के समय. वो सब चीज आपसे छीन ली जाएगी, याद रखना. वो आपके पास नहीं रहेगा. एंड दैट इज वेयर एंड दैट इज व्हाई वी शुड कम टू दिस सत्संग. हमको भक्ति क्लास पे आते क्यों, सत्संग में आते क्यों? ताकि हम इन चीजों को सुने और जीवन में वो परिवर्तन लेके आए. अगर हमने जीवन में परिवर्तन लाया नहीं तो सुनना भी बेकार. फिर तो पक्का इस्कॉन वाले, इस कान से उस कान, है ना. इस्कॉन में आते कुछ लोग इस कान उस कान वाले होते हैं, पर कुछ लोग सिंसियरली जिंदगी. हाँ मतलब क्या बोले? यू सेड समथिंग 15 मिनट. तो द पॉइंट इज one has to use his attachment to achieve God. Unless until you don't have an attachment, how can you achieve? Let's say you are attached to have a nice, you are attached. प्रभु जी जब भी गाड़ी देखता हूँ, Rolls Royce, BMW, limousine, है मन में इच्छा है. And where is it sitting? In your heart, in your mind. इच्छा कहाँ बैठी और किधर नहीं बैठी? हम हार्ट बोल रहे हैं, मतलब हार्ट मतलब हार्ट को सिर्फ पंप कर रहे हैं. व्हाट द मीनस? इन द माइंड, द बैक ऑफ द माइंड. जब भी दिन उठा रोल्स रॉयस लेना है, लिमोजिन लेना है, दैट्स ऑलवेज क्लीन. यू आस्क अ स्मॉल चाइल्ड क्या चाहिए बिफोर योर दिस योर इज द चाइल्ड्स बर्थडे और दे पापा मेरा बर्थडे आ रहा है, क्या करूं? इट्स इन द चाइल्ड्स माइंड. तो नेक्स्ट पेटिशन, बर्थडे में क्या दोगे? बट नेचुरल मदर फादर विल आस्क क्या चाहिए तुझे? देन हिज लिस्ट विल कम. करके पूरा उल्टी करेंगे अपना लिस्ट. एटलीस्ट मुझे एक तो आएगा. अगर एक दो दूंगा तो रिजेक्ट हो जाएगा. उससे जब बड़ा लिस्ट देता हूँ तो चाइल्ड गिव्स अ बिग लिस्ट. तो ये चाहिए तो ये ओ नो यस नो as per the priority list of the parents they may check it yes or no. So what does this mean? This is by default sitting in our mind, and we have to now transform that attachment which is sitting silently in our mind. आप भले शांति से यहाँ क्लासरूम में बैठे हो, तो मुझे कब क्लास खत्म करेंगे, प्रसाद मिलेगा, क्या सब्जी रहेगा पता नहीं, आज सूरज का सब्जी रहेगा कि आलू का सब्जी रहेगा. बहुत लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा था, ये टाइम माइंड नहीं हो. माई लेक्चर इज गोइंग आसक्ति छोड़ दी, इसके साथ आसक्ति इज सच ए थिंग विच इज ए साइलेंट किलर. आपको पता नहीं कि कब आप आसक्ति में हो. यू विल नेवर नो. यू विल बी वन डे यू फाइंड इट, ओ मेरा इसके साथ आसक्ति भी है, इसके साथ आसक्ति है, कोई भी चीज. आई मीन आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी वेग एग्जांपल.
So the bottom line is one has to give up his detach himself from all attachments. अगर attachments के साथ रहोगे, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, then फिर भगवान राम ही बचे. Okay, then what does he say? Controlling the mind, senses and intelligence. Let's read once again so that we can go from the, we have lost the track of it. Shutting out all external senses, sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breath within the nostrils, and thus controlling the mind, senses and intelligence. तीन चीज को कंट्रोल करना है आपको, mind, senses and intelligence. Why is this hierarchy? In the further it will come in the 7th chapter, Lord will say, मन से इंद्रियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? मन है. और मन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? बुद्धि, इंटेलिजेंस. बट हमारा केस में बराबर उल्टा होता है. मन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और बुद्धि को कम स्ट्रॉन्ग. दैट इज द प्रॉब्लम. Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and the vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breath within the nostrils, and thus controlling the mind, sense and intelligence. The transcendentalist, transcendentalist मतलब जो भगवान को पाना चाहते हैं. The transcendentalist aiming at liberation. So who are the transcendentalists who want to do all this? Who want to control their mind, sense and intelligence? दे आर, जिनको मोक्ष की जरूरत है, जो मोक्ष की कामना करते हैं, वो कंट्रोल करेंगे. बाकी लोग तो लिव लाइफ किंग साइज, है ना, जिए तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. क्या प्रवचन आता है, एंजॉय लाइफ. आज ना बड़ा, हाँ, तो एंजॉय लाइफ इन सच ए वे दैट दिस इज योर लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ. एंजॉय 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 एंजॉय. हाँ, तो इट इज लाइक कंटिन्यूस एंजॉयमेंट में वो लोग लिप्त रहते हैं. तो जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं, वो है पहला, वो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन. एक भक्त का लक्षण, पहला लक्षण क्या है? वो भक्ति क्यों करता है? ना कि धन मिले, ना कि हमने को मेरा बेटी का शादी हो, बेटे का शादी हो, मेरा ना गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, उसके लिए पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति पूजा पाठ करता है, भक्ति नहीं करता है. पूजा पाठ इज अ विधि. इट इज लाइक जो हमेशा बोलते हैं ना, रूटीन सा काम करता है. रोज सुबह उठना, नहाना, दिया बत्ती करना, अगरबत्ती घुमा देना, ये सब पूजा पाठ में आता है. ये भक्ति में नहीं आता. भक्ति में कैसा आता है? जबरदस्ती नहीं, प्रेम से. अरे भगवान को आज क्या भोग लगाऊं, भगवान को आज क्या खाना बनाऊं, आज भगवान को क्या मैं क्या देके रीझूं. भगवान किस तरह से यू कैन अट्रैक्ट गॉड. देयर आर 3 ways. शास्त्र से 3 तरीके से आप भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हो. एक राग, दूसरा भोजन, तीसरा श्रृंगार. ये 3 तरीके से आप भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हैं. अब ये 3 तरीका का सीक्रेट बताओ. राग, किसी का अच्छा गला हो, भगवान को कभी कुछ भजन सुनो. भगवान सुनने को बैठे हैं, बेताब है आपके मुंह से. मीरा भाई जो भी गाए, मीरा भाई का सुने ना, तो आप सुना सकते हो. बट हाँ, प्रोवाइडेड यू गॉट अ गुड थ्रोट. भगवान भी काम बंद करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. जस्ट ब्लास्ट आउट. बट वन शुड डू दैट सर्विस. अगर आपको भगवान ने अच्छा गला दिया है, आपको कला दिया है, तो गाइए भगवान. एक आध बार भजन तो गाइए. ठीक है, आपका गला ठीक नहीं, चलो कोई बात नहीं. भोजन तो हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है. चलो गला ठीक करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, गाना सीखना पड़ेगा. ये तो उसको सीखना भी जरूरत नहीं. खाना तो हर कोई खाता ही है, तो उसको थोड़ा प्यूरिफाई करके क्या करना है, बढ़िया सा सात्विक भोजन बनाना है और भगवान को भोग लगाना है. सिंपल. भगवान को भोग लगाना मतलब कुछ नहीं करना है. एक तुलसी का पत्ता डालना है, भगवान के सामने रखना है, बोलना भगवान प्लीज आप भोजन खा दो. बस कोई हाथी घोड़ा करना नहीं है आपको कुछ.
मेहनत नहीं है, बट वी आर सो एडमेंट, खाना बनाओ खिलाओ। तो यही 4 मेहमान घर पे आते रहेंगे तो क्या उत्सुकता से आप खाना बनाओगे? Would you make or not? If some guests are coming, you are so excited. उनको क्या पसंद आएगा, ये उनको नया आइटम ट्राई करती हूँ उनके लिए। कभी भगवान के लिए नया आइटम ट्राई किया? Have you ever tried to make something new for God? In fact, we are so shameless, so selfish. हाँ, भगवान को प्याज लहसुन नहीं चढ़ता ना, ठीक है, भगवान को काजू किशमिश चढ़ा देंगे और अपने लिए क्या करेंगे? मस्त प्याज का काट के पकौड़ी बना के खाएंगे। So shameless. जो हमको पूरा सब कुछ रिसोर्सेस दे रहा है उसी को हम कुछ अर्पण नहीं करते, because we are so busy in our own self. तो second option is make nice food and offer to God. चलो वो भी नहीं कर रहा है, you are bad at it. Let's say you are like not cooking well. So then third option क्या है? श्रृंगार बोला तो बढ़िया पोशाक, डजंट मीन बढ़िया दुकान से लाके पोशाक। ये मत सोचना बढ़िया दुकान में गए, महंगा दुकान में जाके पोशाक लेके आए, वो नहीं है श्रृंगार। ठीक है, पोशाक पहनो, आई एम नॉट सेइंग दैट। थोड़ा सा केसर और चंदन घसो, हाथों से घसो और उससे भगवान के चेहरे पे और माथे पे लगाना, दैट इज श्रृंगार। भगवान देखते हैं आपने मेरे लिए क्या किया। तो इन 3 चीजों से भगवान को रीच सकते हैं। यू कैन attract God or you can make God in your favor. So the bottom line is, one who is interested will do concentrating his mind and focusing himself in achieving God. Now comes the most important part. Aiming at liberation becomes free from desire, fear and anger. Can anyone explain me this desire, fear and anger? बोलिए। डिजायर, फियर एंड एंगर। डिजायर का मतलब क्या? कोई भी भगवान की भक्ति करने के पीछे इच्छा नहीं रहती। कुछ लोग कुछ लोग भगवान की भक्ति इसके लिए करते हैं कि वो डरते हैं, नहीं किया तो भगवान ने मेरा विनाश कर दिया। तो हाँ, डरते हैं कहीं मेरा धंधा तोड़ गया, चलो घी का लगा लेते हैं यार। कई लोगों को मैं देखा है कि भगवान को विश्वास ही नहीं है, बट फिर भी वो लोग पूजा पाठ रखते हैं ऑफिस में। क्यों? क्या पता कल उसने गुस्सा आके अपना धंधा तोड़ दिया। तो आज बोलते हैं ना ऑब्लिगेटरी कर देना है बस, कल भगवान अपने को बोलना नहीं चाहिए मैंने नहीं किया। इसके लिए आजकल पीपल आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट गॉड। तो ये दे डू बिकॉज we are by default God fearing, but Shastra teaches us how to become God loving. We are default, we have a habit of God fearing. भगवान से डरते हैं मगर भगवान से प्यार नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते। जिसको भगवान से प्रेम करना हो वो भक्त बनता है। बाकी डर के मारे तो डरता क्या ना करता सब कुछ करेगा। डरा हुआ व्यक्ति सब कुछ करेगा। एंड एंगर, क्रोध से मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई भगवान। एंगर का मैंने एक छोटा सा कहानी बता के क्लास खत्म करूंगा यहाँ पे। एक बार एक आदमी गोपाल जी की खूब सेवा करता था, रोज दिया बत्ती अगरबत्ती लगा के सेवा करता। बट बेचारा इतना दरिद्र था, इतना गरीब था, उसका पॉवर्टी वॉज नेवर गेटिंग गोइंग। तो वन डे हिज फ्रेंड केम एंड टोल्ड, क्या पागल है, इसका इतना दिन पूजा किया कुछ मिला? मैं तेरे को मेरा शिव जी का आइडल देता हूँ, शिवलिंग देता हूँ, तू उसके सामने पूजा कर, ऐसे देख धन की बरसात। अच्छा ठीक है। तो उसने अगला दिन छोटा सा शिवलिंग दिया, उसने लगाया और उसके सामने दिया बत्ती अगरबत्ती सब लगाया, कृष्ण भगवान को उठा के बाजू में रख दिया, राधा कृष्ण को बाजू में रख दिया। मगर उसने देखा जैसे उसने अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती का सुगंध जो है ना ऐसा उड़ते 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 कृष्ण भगवान के पास जाता है। गुस्सा, तुरंत उसने भगवान के नाक में थोड़ा कॉटन डाल दिया। मतलब अभी तक तो कुछ दिया नहीं, अगरबत्ती फुकड़ में ले रहा है, व्हाट इज दिस?
ऐसा हाथ रख दिया, धुआं नहीं जा रहा, ऐसा ऐसा शिव जी की तरफ जा रहा है, तुरंत भगवान प्रकट। क्यों? भगवान बोले खुश हूं, कम से कम तूने मुझे गुस्से में ही सही, कम से कम अपना माना तो सही, इंसान तो माना। लोग तो मुझे पत्थर समझ के पूछते हैं, निर्जीव समझ के पूछते हैं। जो हम लोग क्या अक्सर क्या भगवान को एक धातु का एक टुकड़ा या पत्थर का एक टुकड़ा समझते हैं। हम जिस दिन हम भगवान को वाकई में एक व्यक्ति समझेंगे, व्यक्ति वही सूंघ सकता है, राइट? ओनली ह्यूमन बीइंग कैन टेक द स्मेल, अ स्टोन और अ पीस ऑफ मेटल कैन नॉट टेक द स्मेल। तो लॉर्ड सेड आई एम सो हैप्पी दैट यू एटलीस्ट कंसिडर मी एज अ ह्यूमन बीइंग। क्या चाहिए बोल, मैं तुझे देता हूं। सो आवर फर्स्ट फोकस शुड बी considering God as a person rather than as a inanimate piece of stone or metal. अक्सर दो चीज का होता है, अगर जगन्नाथ जी जाओगे तो लकड़े का होता है। तो बेसिकली वी शुड कंसिडर द लॉर्ड एज अ पर्सन। हम लोग रथ यात्रा में लेके आते हैं ना भगवान जगन्नाथ जी को, कम से कम 5 से 10 बार, 5 से 7 बार सूखे टॉवल से, ये टाइम बारिश भी बहुत था, तो बारिश के छींटे उड़ रहे थे। So, जैसा किसी बच्चे को आप बाहर लेके जाते हो, उसका चेहरे को आप पोंछते हो बार बार, आप क्लीन द चाइल्ड्स फेस, तो वही साफ करते हैं। सो व्हाट वी डू, बेसिकली वी लव द चाइल्ड, वी वांट टू हैव हिम वेरी नीट एंड टाइडी। सेम वे जगन्नाथ जी इज क्लीन ऑन द रथा। कई बार उनके ऊपर धूल ना लग जाए, कहीं उनके ऊपर हवा ना लग जाए, पानी की छींटें लगे, उनको साफ किया। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स Lord is taken proper care by that. So then if you consider him as a person, then only you are taking proper care of. Okay, so let's now develop attachment towards God. So like this, I would like to close today's lecture. Anybody has got any doubts, questions, can ask.